So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh and today I'm just going to give the sequel of Science Jackboard model paper, and today I have chosen set 5 Science. So please students, watch this video very carefully and try to understand each and every question. Now this is set 5. This is set 5 Science. Now come to the question number 1. The question 1 is rays of light. Light always travels in a straight line. So obviously the answer of first question is A, straight line. Question number 2. Laws of reflection is applied on. Say laws of reflection is applied on plane mirror or concave mirror or convex mirror on all reflected surface. So I think reflection means reflection surface. It's not necessary that should be a mirror. It can be anything. So D is the answer. The next. What is the focal length of the spherical mirror relates to its radius? We know what is the focal length. Focal length f is equals to r by 2, isn't it? So r by 2 means it's half. So I think half is the answer. Now next. Find the focal length of a spherical mirror whose radius is 20. We know f is equals to r by 2, that is 20 by 2 means 10. I think it is 10 answer. Next. Where does an image form when an object is kept at sea? ये आपका मिरर था. Here is a sea. If you put the object here, after reflecting, we will get the same at sea. So we will get the image formation at sea when the object is kept at sea. Now next. The image of the object in a concave mirror is, क्या होता है image? वर्चुअल होगा या रियल होगा या A एंड B दोनों होगा कि कुछ नहीं होगा? तो ये दोनों होगा, रियल भी एंड वर्चुअल भी. नाउ which mirror is used as a rear view mirror of a vehicle? Convex mirror ही rear view mirror होता है. Okay. Next, question number 8. Which spherical mirror is used in a spherical solar cooker? Which spherical mirror is used in solar cooker? सोलर कुकर में कौन सा स्पेरिकल मिरर लगता है? ये है आपका कनकेव मिरर आपका सोलर कुकर में लगेगा. ना क्वेश्चन नंबर 9. The focal length of both spherical mirror and a thin lens is a -15. What type of lens it is? यानी मिरर भी है, लेंस भी है, जिसका फोकल लेंथ अगर -15 है तो कौन सा होगा? बोथ कॉन्केव होगा या बोथ कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव लेंस होगा? देखिए -15 जब भी रहेगा, दोनों का दोनों, चाहे लेंस हो मिरर हो, दोनों में फोकल लेंथ माइनस में ही रहता है कॉन्केव में. चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्केव लेंस हो, इनका फोकल लेंथ हमेशा हम माइनस में ही देखेंगे. ओके. Now question number 10. What is the relation of power P and F of a focal length of a lens? तो हमको पता है कि पावर क्या होता है, फोकस का रेसिप्रोकल होता है, 1/f होता है. P इज इक्वल्स टू, तो यहीं पहले दे दिया P इज इक्वल्स टू 1/f. सो इसका आंसर होगा 1/f. क्वेश्चन नंबर 11. राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस. लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा? अगर वो पावर का है, अगर वो मिरर का मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल्स टू -v/u,
और लेंस का होता है m is equals to v by u. So obviously when they are asking about length, so answer will be D, not A. Now question number 12. What is the approximate shortest distance of a normal vision? यानी नियर पॉइंट डिस्टेंस नॉर्मल विजन का क्या होगा? 25 सेंटीमीटर. I have explained you many times this type of questions. Far point होता है infinity, near point होता है 25 सेंटीमीटर. Now next, what is the image of an object formed by an eye? आई में इमेज का फॉर्मेशन जो होता है उसका नेचर क्या है? क्या रियल एंड इन्वर्टेड होगा, या रियल एंड इरेक्ट होगा, या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगा, या नन ऑफ दिस होगा? तो रियल तो होता ही है बट इन्वर्टेड होता है. हमारी कोई भी किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो रेटिना में हमारी उनकी छवि उल्टी गिरती है हमारे आँख के पर्दे पर. सो इन्वर्टेड. ए इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. In which of the following reaction exchange of two different atoms or group of atoms interact with each other? तो हम देखते हैं कि दो इक्वेशंस जब होते हैं, इक्वेशंस में एक अगर मान लो एक इक्वेशन ए बी है, दूसरा इक्वेशन सी डी है, तो हमको क्या मिलेगा? इसका इंटरचेंज होगा दो का, यानी एक ए डी मिलेगा प्लस बी सी मिलेगा. इस तरह के इक्वेशंस को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट डबल हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा 14 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉ? किस लॉ के तहत हम केमिकल बैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं? जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हम करने से हमको H2O मिलेगा, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, तो ऑब्वियसली वी पुट, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2. तो हमको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत ही हम किसी को बैलेंस करते हैं. क्वेश्चन आता है ना, why a chemical equation should be balanced? So it should be balanced because according to the law of conservation of mass cannot be created nor it can be destroyed. तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट में जितना मास होगा रिजल्टेंट में भी उतना ही इक्वली मास होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या है? क्या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन है, या इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन है, या लैक ऑफ ऑक्सीजन है, या बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का इंक्रीज होता है? यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीजन होता है. ओके, ऑक्सीजन की इंक्रीज को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? नेम द सब्सटेंस एक्स एक सब्सटेंस है विच इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग. इसको वाइट वॉशिंग करने में यूज़ होता है. तो ये एक्स क्या है जिसको हम वाइटनिंग के लिए उपयोग करते हैं? दैट इज ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड ही एक ऐसा पदार्थ है जिससे हमको चीज़ें वाइटनिंग होती है. What is the nature of the metal oxide? मेटल ऑक्साइड का नेचर हमेशा बेसिक होगा, हमेशा बेसिक ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. What does the given picture represent? Now see, this is the picture. ये पिक्चर क्या है? इस पिक्चर को देखने के बाद यहाँ नीचे पता ही चल गया वार्निंग साइन है. displayed on container contained concentrated acids and base. अगर इसमें concentrated acid या base अगर कुछ हो, इससे अगर हम कोई काम करते हैं लेबोरेटरी में और गलती से एक दो दाना हमारे हाथों में लग जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए? तुरंत हमको उसको वॉश करना चाहिए. तो यहाँ पर आपको वार्निंग साइन दे ही दिया. तो यहाँ पर देखते हैं इसके 4 ऑप्शंस क्या है. What does the given picture represent? Waste of water should not be stopped. पानी गिर रहा है, टेस्टेड में पानी बोल रहे हैं. वार्निंग गिवन, तो यहाँ पे तो एक ही चीज़ दिया वार्निंग, तो यही आंसर बी है. ओके.
Now, next question. When a base is mixed with water, which ion forms? देखिए, हम एसिड को वाटर में नहीं डाल सकते, एसिड को हम वाटर में डालेंगे तो फट जाएगा, जो टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो फट जाएगा। तो जब बेस डालते हैं तो हमको ये निकलता है, OH आयन्स निकलते हैं। Which of the following gas evolves when an acid reacts with metal? जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which substance is produced by chloroalkali process? क्लोरअल्काली प्रोसेस होता है। इसमें क्लोरअल्काली प्रोसेस में तहत कौन सा सब्सटेंस इसमें प्रोड्यूस होता है? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। नाउ नेक्स्ट, which of the following substance that is soluble in water? इसमें से कौन सा है जो वाटर में सोल्यूबल होगा, बिटर इन टेस्ट होगा, सोपी टू टच होगा? तो इतने सारी चीज़ें हैं तो बेस ही है, क्योंकि बेस बिटर होगा। ओके, और सोपी अल्काली तो अधिकतर साबुन में बेस ही होता है। नेक्स्ट, which of the following will be the pH value for acid rain? acid rain जनरली एसिड होगा, इसमें जो सबसे कम मात्रा जो 7 से कम तो एसिड होता है, इसमें कम हमको 5 ही दिखता है। सो ऑब्वियसली द आंसर इज 5। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, in a reaction which of the following gas burns with a bursting pop sound? pop sound जब आ जाता है, when a burning stick is brought near, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही है जो पॉप साउंड के साथ बुझ जाता है। Now, which of the following takes place in a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या चेंजेस हमको देखने मिलती है? क्या चेंज, स्टेट ऑफ चेंज होता है, चेंज इन कलर भी होता है, रिलीज ऑफ गैसेस होता है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव सभी होते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। तो ह्यूमन जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए यहाँ फूड पूछा है, अगर प्रोटीन पूछता तो कुछ और होता, फैट पूछता तो कुछ और होता, बट फुल फूड पूछ रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट, द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसको क्या कहते हैं? वेन या आर्टरी या कैपिलरी ट्यूब या जाइलम। जाइलम तो प्लांट्स में होता है, तो हमको यहाँ पे आर्टरी 28 का पी ही आपका सही आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्लीडिंग ऑफ ए ब्लड, जब ब्लड ब्लीड होते रहता है, जब हमारा शरीर का कोई अंग कट जाता है, ब्लड ब्लीड होता है, तो विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? तो कौन सा चीज़ है जो ब्लड हमारा क्लॉट होता है, आगे बहने से रोक देता है? ये है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के वजह से ही भगवान की दी हुई अद्भुत वरदान है, वरना कोई नस अगर कटी तो खून बहते जाएगा, बट यहाँ पे जैसे ही बार को ऑक्सीजन लगेगा ये तुरंत ब्लड क्लॉट होके आगे बहने नहीं देगा। नाउ नेक्स्ट, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एरियल प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब ही होता है लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस हो जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, What is the main product of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यानी ये सब उसको चाहिए, बट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमको प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द लेयर ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड? हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने के अंदर जो जर्म्स है उसको
मारता है और प्लस एक एंजाइम पेप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो वो ऐसे तो एसिड को हम हाथ में लगाते तो हाथ जल जाता है, बट द होल एसिड इज इन स्टमक, बट व्हाई डोंट द स्टमक, द लेयर ऑफ द स्टमक अटैक्ड बाय द acid? So there is a protective layer inside the inner layer of the stomach, that is mucus. Mucus protects us the direct contact of hydrochloric acid to the layer of the stomach. तो हमको म्यूकस जो है, जो स्टमक के ऊपर लेयर है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक को लगने नहीं देता, वरना स्टमक हमारी जल जाती। एवरीथिंग मास्टर प्लान किया हुआ है भगवान के द्वारा। नाउ नेक्स्ट, Which of the following organism has the longest intestine? हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन हालांकि बहुत लंबा होता है लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना से, बट सबसे लंबा किसका होता है? मैन का, डॉग का, काऊ का, लायन का। तो इसमें इस्तेमाल देखिएगा, जो जितना हार्वीवोरस शाकाहारी प्राणी है उनके आंत जो होती है, जो इंटेस्टाइन होता है, बहुत लंबा होता है। तो यहाँ पे जो गाय है, घास, क्योंकि घास में इतना सेल्यूलोज होता है कि हमारा इंटेस्टाइन उस घास को पचा नहीं पाता, क्योंकि हमको बहुत लंबा इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है। तो गाय का जो इंटेस्टाइन इतना लंबा होता है कि घास को आराम से वो लोग पचा लेता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। Now question number 34. Which of the following reproduction occurs in amoeba? अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फ्यूजन। देखिए रिप्रोडक्शन से कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, सो ये चैप्टर का थॉरोली आप लोग पढ़िए लीजिएगा। 35. Which type of reproduction is grafting? ग्राफ्टिंग किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब। Now, which of the following is a female reproductive organ in plants? Pollen grains, ovary, stamen, stigma, ovary आपका female organ system है। Which of the following is a sexually transmitted disease? सेक्स के दौरान डिजीज ट्रांसमिट होता है, कैंसर या टाइफाइड या गोनेरिया या कोरोना। कोरोना तो अभी आजकल किसी के संपर्क में रहने से भी आ जाता है, बट यहाँ पे गोनोरिया है जो है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो एड्स के तहत होता है। ना क्वेश्चन नंबर 38। स्पर्म इज प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसमें, कौन से अंग में स्पर्म तैयार होता है? तो ये टेस्टीज, क्योंकि ये तो फीमेल है, ये मेल है। स्पर्म जो होता है मेल में होता है, ठीक है। ओवियम जो होता है फीमेल में होता है। इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? क्या थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो थर्मल है तो थर्मल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द अदर नेम फॉर द गोबर गैस? गोबर गैस के लिए कौन सा है? CNG, LPG, बायोगैस ही होता है। So my dear students, watch this video very carefully, try to understand it, because जितना आप इन सब सेट्स को प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी आपको फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन देने में आपको लोग को होगा। सो प्लीज़ इसे बार बार देखिए, क्योंकि देखते सुनने से आपकी दिमाग में ये सब छवि बैठ जाएगी, so that it will be easy for you to appear in the examinations. So thoroughly watch all the sets along with the answers. So we'll see you in the next video with another topic. Till then, goodbye.